बनाता है, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोलेंगे द ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in origin, function, they to and perform specific function and can perform specific function, then this is called the tissue. तो ऐसे ग्रुप, ऐसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम हो, कॉमन हो, जिसका जो एक दूसरे से क्या हो, सिमिलर हो, जिसका वर्क ये क्या हो, पार्टिकुलर फिक्स हो, अलग अलग टिश्यू का वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तो टिश्यू की बात करते हैं। तो now I will discuss about the kinds of tissues. When we talk about how many tissues can be possible, then we can say that in case of multicellular or animals, multicellular organism, tissues may be of two types. In case of plant, tissues are considered as plant tissue. In case of animals, tissues are considered as animal tissue. Then we can say that animal tissue may be of two types. First one is plant tissue and second one is animal tissue. If when we talk about when we talk about the plant tissue, then we can say that plant tissue is classified into two main categories. First one is meristematic tissue and second one is permanent tissue. Meristematic tissue is again classified into three main categories, three main types. First one is apical meristem, second one is intercalary meristem, and third one is lateral meristem. When we see in case of permanent tissue, then we can say that permanent tissue can be classified into two main categories. First one is simple permanent tissue, and second one is complex permanent tissue. Simple permanent tissue is again classified into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, whereas complex permanent tissue is classified into xylem and phloem. These xylem and phloem further classified into different categories. In case of xylem, we can say that xylem is classified into tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers, whereas in case of phloem is again classified into five main types. First one is sheath cells, second one is sheath tubes, third one companion cells, next phylum, phloem parenchyma, phloem fibers, etc. Now I will explain about all these terms one by one according to your book. Therefore, you have to concentrate on your book. Open the page number 68 and listen to me carefully. From the last chapter, we recall that last chapter में हम लोगों ने क्या देखा कि we recall that all living organisms are made up of cells. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा, इन सब की बात की गई है। सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम सेल की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक्सप्लेन हो गया है, लास्ट टाइम का वीडियो ऑडियो जो पॉसिबल हो सका था लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को सेंड किए थे, तो हो सकता उम्मीद पूरी थी कि समझ में आप लोगों को आया होगा। नहीं भी आया होगा तो हम फिर से रिपीट थोड़ा कर दे रहे हैं कि सेल कितनी तरह की होती है। सेल में भी ऑफ टू टाइप्स। जैसे सेल को हम लोग डिफाइन किए थे कि सेल क्या है? इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। क्या डिफाइन किए थे कि सेल सभी लिविंग बॉडी की, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी की क्या है? सबसे स्मॉल मीन्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो
सेल की डिफिनेशन जानने के बाद हमें क्या जानना जरूरी होता है कि सेल कितने तरह के हो सकते हैं। तो सेल में भी आप टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जब हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इवोल्यूशन को देखते हैं कि जब विकास का जो इतिहास रहा है कि विकास कैसे हुआ है, तब हम ये जानते हैं कि विकास हमेशा सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर हुआ है, मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे में हुआ है। तो सेल हर एक चीज की क्या है, ओरिजिन हुई है, धीरे धीरे हुई है, और सबसे फिर बाद में से मोस्ट वेल एडवांस, मोस्ट वेल डेवलप्ड एंड एडवांस टाइप ऑफ एनिमल्स में हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो सेल क्या है, सेल में भी आप टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल का मेन फंक्शनिंग पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम उसको सेल को सेल कह पाते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड ना होता तब हम क्या उसे सेल बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। उसी तरह न्यूक्लियस भी इस तरह, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड होता है, घिरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अब हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, जबकि यूकैरियोटिक एडवांस टाइप ऑफ सेल है, मींस ये पुअरली डेवलप और यूकैरियोटिक वेल डेवलप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो मेन फंक्शनिंग पार्ट होता है सेल का। और न्यूक्लियस अगर पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएगा तो आगे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम क्या होता है, रिमेन्स स्कैटर्ड, अंदर बिखरा हुआ रहता है। और इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड मींस कोई भी उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, जबकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, वेल डेवलप होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, टिश्यू की बात कर रहे थे कि प्लांट बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद अभी पूरा एक्सप्लेन करना है। और आपके मिड टर्म एग्जाम में सिर्फ एक चैप्टर आएगा टिश्यू, तो इसलिए आराम से पढ़ते हैं और सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कि सब एक्सप्लेन हो अच्छे से, आपको समझ में आए। जो ना समझ में आता हो वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स है 8 PM टू 9 PM के बीच में ही कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और उसके अलावा नहीं। आगे देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेल को समझाने का मतलब, सेल को अभी जो डिस्कस करने लगे थे, क्यों डिस्कस करने लगे थे, क्योंकि यहाँ एक टर्म आ गया था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। कोई भी चीज को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। if we want to classify all the living beings on the basis of number of cells, then we can classify all the living beings into two main categories. First one is unicellular and second one is multicellular. Unicellular are those animals whose body is made up of only one cell. That's why unicellular organisms are microscopic in size and we are completely unable to see them directly. If we want to see the unicellular animals, then we have to use certain instruments like microscope. Next one thing बताएगा, in unicellular organism, unicellular organisms में सिंगल सेल के द्वारा ही सारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा की बॉडी ले लें, तो अमीबा कैसे होता है, कोई भी शेप बना दे, क्लोज्ड फिगर बना दे, वो क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो अमीबा के यहाँ पे बताया गया है कि अमीबा की जब हम बात करते हैं तो चाहे डाइजेशन की बात हो, रेस्पिरेशन की बात हो, एक्सक्रीशन की बात हो, मीन्स सारे इसेंशियल वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वाइटल लाइफ प्रोसेसेस जो डन होंगी वो सिंगल सेल के द्वारा ही डन होंगी। मीन्स सेल, क्योंकि एक ही सेल से मिलकर बॉडी बनी होती है, एक से ज्यादा सेल नहीं पाई जाती हैं, एक से ज्यादा जब सेल नहीं पाई जाएंगी तो टिश्यू नहीं बनेगा, जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारी एक्टिविटीज सिंगल सेल के द्वारा ही गवर्न होती हैं। आफ्टर दैट क्या लिखा है, इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज, सिंगल सेल क्या कैरीज आउट करती है, सिंगल सेल के द्वारा ही मूवमेंट होता है, इनटेक ऑफ फूड की एंट्री होती है, एंड गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीशन की भी प्रोसेस डन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तब हम क्या कहते हैं, तब कहते हैं देयर आर मिलियन नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे, कितने सेल से मिलकर बनी, मीन्स मिलियन नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स अनकाउंटेबल, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, मिलियन नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। जब इतनी ढेर सारी सेल्स पाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट सेल मिलकर के क्या बनाएंगी, सिमिलर सेल मिलके सिमिलर टिश्यू बनाएंगी, डिफरेंट होगी तो डिफरेंट वन टिश्यू बनाएंगी। सेल्स मिल आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू कंबाइन होकर के डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, पूरी लिविंग बॉडी बनाएंगे ओवरऑल। तो यहाँ वही बताया गया है, बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर million number of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific functions. और इनमें से ज्यादातर सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, मीन्स स्पेसिफिक होती हैं, वर्क स्पेसिफिक होती हैं। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स का वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बताया गया है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और हर अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। मींस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क का क्या होता है, डिवीजन होता है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत छोटी होती है, सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत भी नहीं होती है, तो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तब बॉडी क्या होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है, मोर एडवांस होती है देन द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज मच रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट all the activities of that body in a smooth way, स्मूथली सारा वर्क डन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, इसके लिए लेबर का डिवीजन होना क्या है, मस्ट है। अगर अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स का वर्क अलग अलग नहीं होगा तो क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा तो लाइफ स्पान घटेगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उतने अच्छे से क्या है, डन नहीं हो पाएंगी। Now I will explain about the next one topic in the next one class. I hope all of you understood very well. If you have any problem, you can ask me any question, but between 8 p.m. to 9 p.m. every day. Thank you very much.